Today we will start exercise 7.2 of chapter Ratio and Proportion. From M.L. Agarwal for class 10 for ICSE. From question number 12. Question number 12. Aradhya, Yes, sir. B is the mean proportion between A and C. Prove that A square plus B square and B square plus C square are in proportion. मतलब B is the mean proportion between A and C. That means A ratio B proportion to B ratio C is given. And what we have to prove? मैं side पे लिख रहा हूँ. We have to prove A, C, this and this are in proportion. A upon A square plus B square. We have to prove equal to we have to prove A upon C is equal to A square plus B square upon B square plus C square. This thing we have to prove. ये prove करना है हमें. What we can do? Yes, Aradhya? Sir, AC is equals to B square. Yes. B square is equal to AC or AC is equal to B square. Now, we have to take the right hand side. Left hand side में A and C है. बहुत दिक्कत होगी अगर इसको लेंगे तो. इसलिए क्या लिया हमने? राइट हैंड साइड. A square plus B square upon B square plus C square. What we can do? Sir, A square plus AC. Yes. Fill the value of B square. That is AC upon AC plus C square. Square. ऊपर से क्या कॉमन है? Sir, A. What is left? Sir, A plus C. नीचे से क्या कॉमन है? C, sir. A plus C. What we get? A upon C is equal to left hand side. Hence verified. Hence proved. समझ आया बच्चे कैसे किया? Yes. Now, 13th sum. Alfisha. Yes, sir. B is the mean proportion between A and C. B is the mean proportion between A and C. Why same? Prove that AB plus BC is the mean proportion between this and this. Mean proportion मतलब this upon this is equal to this upon this. We have to prove. Same. B is the mean proportion between A and C. We have to write down A ratio B proportion to B ratio C. और proof क्या करना है हमें? We have to prove AB plus BC is the mean proportion between A square plus B square upon AB plus BC. We have to prove AB plus BC upon B square plus C square. From B here, square, what we get? So B square is equals to AC. Fill the value of B square in left and right both sides. ठीक है? Yes, sir. Left hand side. A square plus B square upon AB plus BC. What I have to write down? A square plus AC upon AB plus BC. Yes. Sir, A is common. A plus C upon B common A plus C. A plus C is cancelled, but we get A upon B. A upon B. Now right hand sir, side. RHS. AB plus BC. plus BC upon
AC plus C अगले square. चलो अगले स्टेप में लिख देता हूँ बेटा मैं, Okay, sir. बी स्क्वायर की वैल्यू AC ये AC रही है ना, plus C square. बी इज कॉमन, A plus C. C is common. A plus C. बट ये तो इक्वल नहीं आए, अब क्या करें अल्फिशा? नहीं पौरुष नहीं बोलना। हाँ जी अल्फिशा, व्हाट वी कैन डू? Sir, again we will do the B square. ए अपॉन बी, ए रेशो बी मतलब ए अपॉन बी इज इक्वल टू बी अपॉन सी इज गिवन ना, Yes, sir. तो देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, बस इतना करना। ये Okay, स्टेप sir. देखो बच्चे, हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया वी गेट ए अपॉन बी, राइट हैंड साइड को सॉल्व किया बी अपॉन सी। नाउ ए अपॉन बी इज इक्वल टू बी अपॉन सी इज गिवन, ए अपॉन बी बी अपॉन सी के इक्वल गिवन है हमें, यही था ना, ए रेशो बी का मतलब ए अपॉन बी इज इक्वल टू बी अपॉन सी, दिस इज गिवन ना, ये दोनों इक्वल है, तो दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसमें 2 मिनट में Yes, sir. नाउ we'll reach on question number 40. Y is the Anika. Y is the mean proportion between X and Z. Prove that XYZ into X plus Y plus Z whole cube is equal to XY plus YZ plus ZX whole cube. Yes, Anika. Yes, sir. क्या करें? सबसे पहले जो गिवन है, Y is the mean proportion between X and Z. That means Y square equal to X into Z. X upon Y is equal to Y upon Z. ऐसे लिख लिया करो, या तो रेशो में लिख लो या x अपॉन वाई इज इक्वल टू वाई अपॉन जेड, वाई मीन प्रोपोर्शन है ना, यहां से हमारे पास क्या आ गया, Y square equal to X into Z. ये आ गया। अब उसके बाद बच्चे दे हैव आस्क्ड टू प्रूव, मैं यहाँ पे लिख देता हूं जो प्रूव करना है, एक्स वाई जेड इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स होल क्यूब, व्हाट वी कैन डू? तो क्यूब बताइए खोलेंगे एक साइड को लेकर। नहीं, क्यूब ओपन नहीं करना, without opening the cube you have to solve, then how we can solve, please tell me. तो फर्स्ट हम एक्स वाई जेड को लिख सकते हैं वाई क्यूब। Yes, x into z, that is y square into y, y cube। ये स्टेप समझ आ गया बच्चे, ऑल ऑफ यू? Yes, sir. हमने क्या किया, x into z that is y square, एक y ऑलरेडी था तो y square into y we get y cube। now y cube and this whole cube is there, तो y को अंदर ले जाओ, xy प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस प्लस वाई इंटू जेड होल क्यूब। ये समझ आया क्या किया मैंने? चलो एक स्टेप में और कर देता हूँ, तो बिना ऐसे ब्रैकेट खोले भी हो सकते हैं, मतलब बिना वाई को मल्टीप्लाई करें। अब देखो ब्रैकेट ओपन करेंगे, लेंथी यार, ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब का आइडेंटिटी है कोई परुष? नहीं सर, फिर ओपन कैसे करेगा? तो मतलब बिना वाई की वैल्यू डालेंगे उसी करेंगे। नहीं बच्चे, हमने क्या किया, एक्स जेड वाई क्यूब। अब इस स्टेप को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्योंकि ये वाई का भी क्यूब है, इसका होल का भी क्यूब है, तो मैं ऐसे होल का क्यूब लिख सकता हूँ ना। अब वाई को मल्टीप्लाई किया तो ये स्टेप आ गया। अब अगले स्टेप में वाई स्क्वायर की वैल्यू एक्स जेड फिल कर देंगे, एक्स वाई, वाई स्क्वायर के प्लेस पे एक्स जेड प्लस वाई जेड। ओहो, ये तो आंसर ही आ गया निका।
आ गया ना? Yes, sir. समझ आया बच्चे सबको? Yes, sir. क्योंकि हर कोई क्या सोचेगा sir. कि इसको ओपन कर दें। ओपन कैसे होगा? एक्स प्लस वाई को एक टर्म, जेड को दूसरी टर्म लेके, वो बहुत ज्यादा लेंथी। अब इसमें क्या हुआ? सिर्फ 3-4 स्टेप्स में हमारा सम आ गया। ठीक है, नाउ विल रीच ऑन क्वेश्चन नंबर 15। 15 सम, आदित्य, Yes, sir. a plus c is given mb and 1 upon b plus 1 upon d is given m upon c. Prove that a b c d are in proportion. हमें दो इक्वेशंस गिवन है। एक तो गिवन है a plus c is equal to mb, दूसरा गिवन है 1 upon b plus 1 upon d is equal to mc. We have to prove a b c d are in proportion. चलो, जो गिवन है पहले मैं वो लिख लेता हूँ और जो प्रूव करना है वो साइड पे लिख लेता हूँ। ठीक है, Yes, sir. a plus c is given mb, 1 upon b plus 1 upon d is given m upon c. We have to prove a upon b is equal to c upon d. A, b, c and d are in proportion. ये चीज प्रूव करनी है। What I can do? सर हम लोग दोनों इक्वेशन से m की वैल्यू फाइंड करेंगे सर। Very good. तो m इक्वल्स टू देखो, जो चीज प्रूव करनी है उसमें इन चारों में से कौन सा नहीं, पांचों में से m नहीं चाहिए, तो हम Yes, क्या sir. करेंगे? यहां से m की वैल्यू आ गई, यहाँ c ऊपर ले जाओ, c अपॉन b प्लस c अपॉन d इज इक्वल टू m। m इक्वल है तो ये दोनों इक्वल होंगे जो सर्कल कर दिए। यस सर। a, इसको भी मैं a अपॉन b लिख दूं प्लस c अपॉन b यस सर। इज इक्वल टू c अपॉन b B प्लस c अपॉन d। अपॉन डी तो कैंसिल हो जाएगा वो। We get a one अपॉन डी sir. इक्वल्स टू c अपॉन डी। Hence proved. यही प्रूव Yes, करना sir. था हमें। मतलब देखो, सम इसको देख के ऐसे लगता है पता नहीं कैसे प्रूव होगा, बट ये चीज देखो कि इसमें दोनों में क्या चीज नहीं चाहिए, हमें m नहीं चाहिए जो प्रूव करना है। तो दोनों में से मैंने क्या किया, m की वैल्यू निकाल ली। यहाँ मैं सीधा b नीचे ले जाता तो ये स्टेप मुझे करने की जरूरत नहीं थी, एक एक्स्ट्रा स्टेप किया मैंने, यही पे मतलब हो जाता। सम समझ आया बच्चे? 15। यस सर। So, इसके बाद आ जाओ अरोश। Yes, sir. x अपॉन a, y अपॉन b, z अपॉन c, ये हमें गिवन है। x अपॉन a, y अपॉन b, z अपॉन c गिवन है। प्रूफ क्या करना है? ये चीज प्रूफ करनी है। x क्यूब अपॉन a स्क्वायर, y क्यूब अपॉन b स्क्वायर, z क्यूब अपॉन c स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस y प्लस z होल क्यूब अपॉन a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर। ठीक है, जो प्रूफ करना है वो Yes, sir. यहाँ पे लिख देता हूँ। We have to prove x cube upon a square, not cube, y cube upon b square, z cube upon c square. We have to prove x plus y plus z का whole cube upon a plus b plus c का whole square. ये प्रूव करना है। How we can do this? Arush. So, ये x by a equals to k का सब फॉर्मूला। Yes. अब देखो, जो चीज हमें गिवन है उनमें कुछ कॉमन है? x, a, y, b, z, c कुछ भी नहीं कॉमन ना, इसलिए क्या करो, के लेट कर, तीनों आपस में इक्वल थे, के इक्वल फर्स्ट को इसके इक्वल करेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी? So, एक a के a ऊपर जाके मल्टीप्लाई, y अपॉन b को k की इक्वल करेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी? b के साथ एंड z इज c के। c। अब क्या करें? So, लेफ्ट हैंड सब्स्टिट्यूट साइड में फिल कर दें Yes, और राइट हैंड साइड, दोनों में फिल करना पड़ेगा। okay, sir. x क्यूब मतलब a k का क्यूब अपॉन a स्क्वायर प्लस b k का क्यूब अपॉन b स्क्वायर।
जेड की प्लेस पे सी के का क्यूब अपॉन सी स्क्वायर. ओपन दिस. ए क्यूब अपॉन ए स्क्वायर, बी क्यूब के क्यूब अपॉन बी स्क्वायर, सी क्यूब के क्यूब अपॉन सी स्क्वायर. ए के क्यूब, बी के क्यूब, सी के क्यूब. के क्यूब is common. What is left? A plus B plus. This is left. Now we have to take the right hand side. x के प्लेस पे a के प्लस y के प्लेस पे b के प्लस z के प्लेस पे c के होल क्यूब अपॉन a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर. What is common here, Arosh? A sir. What is left? A plus B plus C. होल क्यूब अपॉन a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर. इसको अलग अलग कर सकते हैं, के क्यूब इंटू ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, क्योंकि होल का क्यूब है ना इसलिए स्क्वायर ब्रैकेट डाला था, अपॉन में Yes. ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर. नीचे 2 पावर है इसकी, ऊपर 3 पावर है, कट. तो ये क्या आ गया? इक्वल आ गया. लेफ्ट हैंड साइड भी ये है, राइट हैंड साइड भी ये आ गई, पावर 1 हो गई ना. Yes, sir. तो हो गया प्रूव. समझ आया? Yes sir. Yes, sir. अब इसका सेकंड और थर्ड पार्ट ट्राई करोगे कि करवाऊं बच्चे में? बोलो. कर लेंगे सर. इसमें थर्ड लेफ्ट और राइट, इसमें लेफ्ट और राइट दोनों में फिल करना है, इसमें सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड में फिल करना है. थर्ड पार्ट करवाऊं? कौन बोला था? सर ट्राई करेंगे सर, अगर नहीं हुआ तो कल आपसे पूछ लेंगे. किसी ने बोला था ना अभी कि थर्ड पार्ट करवा दो. किसने बोला था? किसने बोला था? मैं पता नहीं. माशा ने बोला था या लतीशा Yes, ने sir. बोला था? माशा ने बोला था, यस है ना सर. माशा? यस माशा, सर. थर्ड पार्ट आप करवा रहे हो मुझे अभी. ये चीज सेम है, ये वही आ जाएगा. मैं सीधा लिख देता हूं, एक्स ए के, वाई बी के एंड जेड सी के. अब जो प्रूव करना है मैं उसकी लेफ्ट हैंड साइड सीधा लिख रहा हूं बेटा. ए एक्स माइनस बी वाई अपॉन ए प्लस बी इंटू एक्स माइनस वाई प्लस बी वाई माइनस सी जेड अपॉन बी प्लस सी इंटू वाई माइनस जेड प्लस सी जेड माइनस ए एक्स अपॉन सी प्लस ए इंटू जेड माइनस एक्स. सी के इक्वल प्रूव करना है. जहां पे एक्स है वहां पे ए के, जहां पे वाई है वहां पे बी के, सब में, और जहां जेड है सी के. ए इंटू ए के, मैं सीधा ए ए स्क्वायर स्क्वायर के के. बी स्क्वायर के. ए प्लस बी, यहाँ पे ए के माइनस बी के. बी स्क्वायर के. सी स्क्वायर के. यस और नो? यही आएगा. बोलो बच्चे. यस सर. ऊपर से के कॉमन. व्हाट इज लेफ्ट? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ए प्लस बी इसको माइनस. मैंने एक शॉर्टकट मार दिया. आपने पहले ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखना है, उसके अगला स्टेप ये लिखना है. नीचे से इसमें से के कॉमन आगे आ जाएगा बिल्कुल. ए प्लस बी, ए माइनस बी. सेम इसमें भी वैसे ही, के कॉमन बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर. मतलब सम को देख के नहीं डरना, समझे?
Yes, sir. ये क्या हुआ अब देखो, कुछ भी नहीं बचा ना इसमें, Yes, sir. ना इजी सम बन गया। ये इससे के इससे वन बच गया, ये इससे के इससे वन बच गया, से ये इससे के वन, वन प्लस वन 3 इज इक्वल टू RHS। हो गया प्रूफ। समझे बच्चे? Yes, sir. नाउ 18th सम। जेमी, तो 17 सर। 17 सर। सॉरी 17th तो वैसे तुम खुद कर सकते हो। तो उसका फोर्थ पार्ट नहीं हो रहा था सर। 17 का चलो फोर्थ पार्ट कर लो। यस सर। बी डी, हमें क्या गिवन है, ए अपॉन बी सी अपॉन डी इज इक्वल टू ई अपॉन एफ। और जो प्रूफ करना है वो यहाँ पे लिख दूं बच्चे मैं, बी Yes, डी sir. एफ, बी डी एफ ए प्लस बी अपॉन बी प्लस सी प्लस डी अपॉन डी प्लस ई प्लस एफ अपॉन एफ होल क्यूब किसके इक्वल, 27 ए प्लस बी सी प्लस डी ई प्लस एफ। दिस वन वी हैव टू प्रूव। के इक्वल लेंगे, Yes, यहां sir. से ए की वैल्यू, जैमी The BDF, नो बच्चे, यहां से इन तीनों को के इक्वल, sir, KA, ए अपॉन बी इक्वल टू के, तो ए की वैल्यू क्या आएगी, sir, बी के। BK, सी अपॉन डी को के इक्वल करेंगे, सी की वैल्यू, DK, ई अपॉन एफ को करेंगे तो sir, FK. अब जहां पे ए है वहां पे बी के फिल हो जाएगा, जहां सी है वहां डी के, जहां ई है वहां पे एफ के, लेफ्ट हैंड साइड। बी नहीं है, डी नहीं है, एफ नहीं है, तीनों की वैल्यू नहीं है ना के की फॉर्म में, तो बी डी एफ F, बाहर ऐसे ही रहेगा। ए के प्लेस पे क्या आ जाएगा, बी के BK. प्लस बी अपॉन बी Yes, sir. प्लस सी के Plus प्लेस पे DK, प्लस DK डी plus अपॉन D, डी plus FK plus F upon F, the whole cube. बी डी एफ एज लाइक, फ्रॉम हियर व्हाट इज कॉमन, The B, व्हाट इज लेफ्ट, K plus 1. अपॉन बी, Yes, बी sir. डी कैंसिल, सेम हियर डी इज कॉमन, के D, प्लस K 1 plus 1, D and D cancel, plus K plus F, K plus 1, F. बी डी एफ एज लाइक के प्लस 1 के प्लस 1 के प्लस 3 होल क्यूब, Yes, sir. यस और नो। फ्रॉम हियर 3 इज कॉमन, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, उससे थोड़ा इजी हो जाएगा आपको समझना। मैं इसको 3 ऐसे K लिख सकता हूँ, plus 1. Yes, sir. होल क्यूब। नाउ 3 क्यूब इज, Sir, 27, sorry, 27. वो बाहर ले आए, बी डी एफ के PDF, प्लस 1 होल क्यूब, बस यहां तक। अब आ जाओ राइट हैंड साइड पे, 27 फर्स्ट ब्रैकेट में ए के A प्लेस पे plus BK, बी के प्लस बी प्लस इंटू D सी के प्लेस पे into डी के K plus D into F, FK plus F. 27 as like, from here what is common, Sub B, what is left, K, K plus 1, from here D, K plus 1, and F, K plus 1. 27 B D F K plus 1 K plus 1 K plus 1। आदित्य ये तो And the इजी whole था। cube. सर मैंने कोई सिली मिस्टेक की होगी फिर। ओके
हो जाएंगे बेटा 17 के बाद सारे के सारे सेम ऐसे ही करने हैं सारे। ट्राई करेंगे सर। खुशी, यस सर। मुझे ये था सो गई तुम कहीं। नहीं नहीं नहीं, नहीं, मैं सच बोलूं तो नींद तो आ रही है। चांटा मार खींच के अपने आप को, नींद उड़ जाएगी। ए एक्स इज इक्वल टू, मार तो नहीं लिया? नहीं। ए एक्स इज इक्वल टू बी वाई इज इक्वल टू सी, वी हैव टू प्रूव दिस इज इक्वल टू दिस। ये गिवन है ये। ए एक्स is equal to by is equal to cz is given, and the thing which we have to prove, x square upon yz plus y square upon zx plus z square upon xy. We have to prove equal to bc upon a square plus ca upon b square plus ab upon c square. देखो तीनों इक्वल है, कुछ भी कॉमन नहीं है इनमें, इसलिए क्या करेंगे यस हम, सर। के लेट करेंगे। इक्वल टू के। ए एक्स तो इक्वल टू के। यहां से एक्स पहले को के इक्वल किया, हाँ, ए एक्स इक्वल टू के, सो एक्स की वैल्यू होगी के ए और के के अपॉन। अपॉन ए नहीं आएगी, हाँ के जी सर, ए के आएगी। अपॉन है। के अपॉन ए। ओ सॉरी, इसको गलत के बोल इक्वल दिया। करेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी, के अपॉन बी। एंड फ्रॉम हियर z इज, के अपॉन सी। यस, ये आ गई। हाँ और जी देखो सर। राइट हैंड साइड को छेड़ने का जरूरत नहीं है, ये हाँ, है एल एच एस से करना होगा। सिर्फ एक्स वाई जेड इसमें ही है ना, हाँ तो जी। ओनली लेफ्ट हैंड। तो एक्स की वैल्यू वहाँ पे हम पुट कर देंगे ए एक्स स्क्वायर, क्या क्या क्या, के अपॉन ए स्क्वायर, एक्स की वैल्यू। के स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर हो जाएगा, हाँ वाई जेड। सर, एक डाउट था। हाँ जी, सर, जो आपने के स्क्वायर अपॉन ए एक्स लिखा है उसे हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, के अपॉन ए फिर होल ब्रैकेट होल स्क्वायर। स्क्वायर। हाँ फिर ओपन करेंगे तो अगला स्टेप यही बनेगा ना, मैंने एक स्टेप खा गया मैं। अच्छा, ठीक है। y के प्लेस पे ये फिल करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो के स्क्वायर अपॉन के बी स्क्वायर हो स्क्वायर जाएगा बी ना। अपॉन बी स्क्वायर, हाँ। मेन लाइन को थोड़ा बड़ा रखना, क्योंकि ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है। ओहो, यहाँ पे चलो मैं वाले स्टेप में फिल करता हूँ, के स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर अपॉन एक्स वाई। एक्स वन। मैंने वाई यहाँ पे नीचे नहीं फिल की अब ना, इन ये भी। सबका एलसीएम निकाल लेंगे। क्या करेंगे क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे, सही बोला मैंने? चांडा खाना है, चांडा खाना है, नहीं। खाना खा लिया? हाँ जी सर। फिर तो जरूरत नहीं है, नीचे मैं वैल्यू फिल करना भूल गया बेटा। अच्छा, जेड की भी तो है। कि RHS से ज्यादा आसान था। चल कोई बात नहीं, क्यों टेंशन ली है, ये भी आसानी है, वो वैल्यू देख के फिल करनी पड़ती है ना, इसलिए। ये है बेटा, वाई देखो जो ऊपर ये मेन लाइन है ना, जो ए स्क्वायर था वो मैंने नीचे ले गया मेन लाइन के। हाँ। वाई की वैल्यू ये, जेड की वैल्यू ये, के स्क्वायर बी स्क्वायर मेन लाइन के नीचे ले गया, जेड की वैल्यू ये है, एक्स की वैल्यू ये है। के स्क्वायर सी स्क्वायर में नीचे ले गया, एक्स की वैल्यू ये है, वाई की वैल्यू ये। के स्क्वायर, ये जो बी सी है वो कहाँ चला जाएगा, ऊपर। नीचे क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर के स्क्वायर, स्क्वायर। मोटी, बी स्क्वायर के स्क्वायर, ए बी के स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर के स्क्वायर। के स्क्वायर से के स्क्वायर कट गया, तो गेट द आंसर, यही हमें आंसर चाहिए। कितना मुश्किल था ना पौरुष।
वैसे आरएचएस से इसमें आरएचएस में ज्यादा इजी, क्या इजी था उसमें? उसमें सिर्फ डायरेक्ट वैलिड। उसमें भी तो यही करना था, बी सी और ए की वैल्यूज फिल करनी थी बेटा। दोनों डायरेक्ट क्या फिल करेगा? एक मिनट, डायरेक्ट क्या फिल करेगा बच्चे? ही। तो मतलब मैंने स्टेप्स कम करके करा है ना अभी। नहीं, मैं ऐसे नहीं होता, स्टेप इतने ही बनेंगे। इसमें भी मैंने एक दो स्टेप खाए हैं। हाँ जी, क्या बोल रहे थे बच्चे, खुशी? वैसे मैं बस कहती कि दोनों में सेम चीज ही करनी थी, चाहे किसी में भी कर लो। हाँ, उतने तो स्टेप कोई ही बनेंगे पौरुष, करके देखना। यस सर। लेटर ही चेंज होएगा बस। हाँ जी। नाउ कृष्णा, तो गया वो पक्का? यस सर। अच्छा, उठ गया? नींद खुल गई? सर। आवाज सुनाई देगी? हाँ सर। ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन, ए अपॉन बी हमें सी अपॉन डी के इक्वल गिवन। ए बी सी डी आर इन प्रपोर्शन, प्रूव दैट। पहला पार्टी करेगी, ठीक है? ओके सर। ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी इज गिवन। प्रपोर्शन का मतलब ये हुआ, वट यस वी सर। हैव टू प्रूव। फर्स्ट पार्ट में हमने प्रूव करना है 5a प्लस 7b इंटू 2c माइनस 3d किसके इक्वल? 5c प्लस 7d इंटू 2a माइनस 3d। ये हमें प्रूव करना है। सर के लिख लें बराबर में। क्या? के। लेट करेंगे, बराबर में लिखेंगे नहीं, ऐसे। ए तो बराबर बी एक, के। हाँ, एंड सी सी बराबर डी के। डी के। पुटिंग द लेफ्ट वैल्यू हैंड ऑफ ए। साइड, हाँ यस सर। सर हाँ फिर जी, इसको मल्टीप्लाई करके नहीं कर सकते थे? कैसे करेंगे बेटा? ए बी को 5 और 7 से मल्टीप्लाई कर दें और सी डी को 2 से और 3 से, फिर इसके बाद कॉम्पोनेंट और डिविडेंड अप्लाई कर बच्चे दें। अकेला ऐसे कैसे कर देंगे? इधर हमने 5/7 से किया, तो इधर भी तो 5/7 से ही होगा बेटा। अच्छा। कंपोनेंट और डिविडेंड से हो जाएगा, बट वो एक्सरसाइज अभी स्टार्ट नहीं हुई, तो हमें तो केले हम लेट यूज नहीं करके कर सकते ना सर, वी कर कांट सकते हैं, यूज। कर सकते हैं, तो यूज करो कर ना सकते सर। हैं। यार ये एक सम किसी ने मेरे से समझा था, जिसमें अकेला कंपोनेंटो लगा था, एक में डिविडेंडो लगा था, याद है याद नहीं या है नहीं सर। याद? चलो, पहले हम इस मेथड से तो कर ही लोगे ना अब? कृष्णा, हो जाएगा? हो जाएगा सर, हो जाएगा। सिंपल ही है, ए के प्लेस पे ये फिल कर देना है, ओके। सी के प्लेस पे ये फिल कर देना है, उसी उसी ओके टाइप सर। से इस साइड पे, सी के ओके सर। प्लेस पे और ए के प्लेस पे, और कुछ नहीं, ठीक है? उसके डन कॉमन सर। वगैरह लेफ्ट एंड राइट इक्वल आ जाए। अगर कंपोनेंडो और डिविडेंडो का यूज करना है तो पहले ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी, ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी। यहाँ पे क्या है, 5/7 है ना, 5/7 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया, किया, ओनली कंपोनेंडो लगाना है, अकेला कंपोनेंडो। क्या आ जाएगा? 5a प्लस 7b अपॉन 7b इज इक्वल टू 5c प्लस 7d अपॉन 7d, यही आएगा, बोलो यस ये सर। सुनो। सर यस खोल के सर। बताना, दोबारा बताना। कंपोनेंडो लगाया अकेला, कंपोनेंडो में क्या होता है, जो निचले वाली टर्म होती है ऊपर प्लस हो जाती है, नीचे सेम रहता है, नीचे वाली टर्म ऊपर प्लस होगी, नीचे सेम रहता ओके सर। है। अब ये क्या किया हमने? ऑल्टरनेंडो। ठीक है आहिल, ऑल्टरनेंडो। हाँ सर। तो 5a, ये सम समझा था किसी ने मेरे से? पता नहीं माशा ने समझा था, पता नहीं अल्फीशा ने समझा था, मुझे नहीं याद। फर्स्ट इक्वेशन सेम यहाँ पे। अब 2/3, इसको भी 2/3 से, तो इसको भी 2/3 से करना पड़ेगा। अब देखो माइनस है दोनों में, क्या लगाएंगे?
ओनली डिविडेंडो। डिविडेंडो में क्या होता है, नीचे वाली टर्म ऊपर जाके माइनस हो जाती है, नीचे सेम, नीचे वाली टर्म ऊपर जाके माइनस हो जाती है, नीचे सेम। यहाँ पे भी क्या किया, और अल्टरनेटिव लगा दिया। क्या आ गया हमारे पास, 2a माइनस 3b अपॉन 2c माइनस 3d, किसके इक्वल, 3b अपॉन 3d। राइट हैंड साइड क्या है, b अपॉन d, यहाँ पे भी क्या है, b अपॉन d, फ्रॉम इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकंड। these are equal, 5a plus 7b upon 5c plus 7d is equal to 2a minus 3b upon 2c plus 2c minus 3b। क्रॉस कर दो, you get the answer। सर ऐसे ही तो बोले थे। बच्चे मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी जो ये हम कर रहे हैं सेकंड एक्सरसाइज 7.2, इसमें अभी तक कंपोनेंटो डिविडेंडो एक्सप्लेन नहीं हुआ। ठीक है, आपने किया हुआ है कंपोनेंटो डिविडेंडो, अगर आप सिर्फ एमएल अग्रवाल में से करते, किसी और बुक में से ना किया होता संदेधी, फिर यस क्या सर। होता बच्चे, फिर तो आप केलेट करके ही करते ना, क्योंकि अभी तक एक्सप्लेन नहीं हुआ, वो नेक्स्ट एक्सरसाइज में आएगा। हाँ, एग्जाम में अगर ऐसे सम आ जाता है कि ये गिवन है और ये प्रूव करना है, तो तो हम इधर ऐसे ना। कर सकते हैं। समझे बच्चे, ओके सर। ये नहीं है कि वहां पे केलेट करके करना होगा, केलेट करके भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। और ओके वहां पे ना ऐसे एक चीज और लिखी होगी, बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ प्रपोर्शन। जब कंपोनेंटो डिविडेंडो अल्टरनेटो ये लगाना है ना, तो वहां पे ये जरूर मेंशन होगा, तब हम केलेट करके नहीं कर सकते। अगर ओके उन्होंने सर। लिखा है ना कि बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ प्रपोर्शन, तो हम ऐसे नहीं कर सकते, मतलब केलेट करके नहीं कर सकते। अगर नहीं लिखा, सिंपल लिखा है, तो हम कर सकते हैं। समझ आ गया बच्चे ये। यस यस। सर। अब इसके सारे पार्ट्स मेरे को लगता है कि कर लोगे आप इजीली, क्योंकि केलेट करके ही करना है, ए की वैल्यू बी के, सी की वैल्यू डी के, सब में ऐसी करनी। ओके, हो जाएगा, यस सर। ट्राई करोगे। मुझे पता है प्रॉब्लम आएगी, पर प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जितना खुद प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा बेटर। सर एक क्वेश्चन था सर। हाँ, सर आपने हाइट्स एंड डिस्टेंस चैप्टर सेलिना से करवाया है क्या सर? पता नहीं यार, कुछ याद नहीं। सेलिना में से करवाया कि कौन सी बुक में से करवाया सर एमएल अग्रवाल सर और एमएल एस से करवाना। एमएल से करवाया। से भी हाफ हुआ था, मतलब स्टार्ट हुआ था। अच्छा, सेलिना में से। नहीं सर, एच में से। अच्छा, नहीं है, ओके। समझ आ गया बच्चे। यस सर। यस सर। आज क्या है, फ्राइडे है ना, यस सर। तो एक काम करो, फ्राइडे, एक सेकंड एक सेकंड। वेडनेसडे को मुझे टेस्ट दे दो। कौन से सर चैप्टर मेरा पर सर? एग्जाम है। किसका? यस सर, वेडनेसडे। मेरा मेरा भी एग्जाम टेस्ट है सर। चलो, सर जिसने विच देना हुआ वो चैप्टर? दे देना। इसी का रेशियो इन प्रपोर्शन, ये रेशियो एंड ट्यूसडे प्रपोर्शन तक का है ना, टेस्ट। ट्यूसडे तक। आज सर तो कितने बजे? जब मर्जी दे देना, उसको कोई दिक्कत नहीं है। सर रेशियो प्रोपोर्शन टाइम लगेगा सर, सो सर कल देना टेस्ट। नहीं बेटा, वेडनेसडे को बोला है मैंने। ओके सर, वेडनेसडे को। वेडनेसडे तक इसमें से कंप्लीट हो जाएगा ना, क्योंकि जो भी प्रॉब्लम्स, कई बच्चों को प्रॉब्लम आई थी, क्योंकि ये चैप्टर नहीं तो मैं करवाना नहीं था, मैंने अभी इसीलिए करवाया था। ठीक है बच्चे। यस सर। ठीक है सर। सर हाँ, 7.1 की वीडियो भेज देंगे आप? भेज दूंगा बच्चे, कुछ प्रॉब्लम आए सर। कोई बात। 20th सम, x y z are in continued proportion। तो
अभी हमारे पास लव सोनी, लव सोनी जी, यस सर। किससे लड़ाई कर रहा था तू? तो छोटे भाई। हैं? छोटे भाई से? अरे देख, कोई बात नहीं, मेरे को क्लास लगा ले, मैं फिर देखूंगा मैं तो। हैं? तंग कर रहा था? बता दे। X, Y, Z are in continuous proportion. What it means, love? सर कॉन्टिन्यूटी में मतलब इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड। शाबाश। लव सोनी जी, आपने कोई सम नहीं किया है ना, मेरे को लग रहा है। माशा। सॉरी सर। सर एक्स Yes. अपॉन वाई, एक्स अपॉन हाँ वाई इज इक्वल टू वाई अपॉन जेड इज इक्वल टू जेड अपॉन वाई। हाँ, नहीं, बस एक्स अपॉन वाई इज वाई अपॉन जेड, खत्म हो गया ना, आगे कुछ नहीं है। वो एक्स सॉरी सर, वो अपॉन ध्यान। वाई, वाई अपॉन जेड, ये हमें गिवन, ये गिवन है हम। तो प्रूफ क्या करना है हमें? एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर अपॉन वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स अपॉन जेड प्रूफ करना। हाउ वी कैन डू दिस? बोलिए बच्चे। लव सोनी जी कहाँ चले गए? यस सर, यस सर। बताइए क्या करें? ये चीज हमें गिवन है और ये हमें प्रूफ करना है। हाउ वी कैन डू दिस? सर पहले तो मल्टीप्लाई कर देंगे अपन। एक्स एक्स इंटू जेड, एक्स जेड। यस, इज इक्वल टू वाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। यस सर, क्रॉस मल्टीप्लाई। एक्स जेड इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। वाई अब स्क्वायर। इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लो, ओपन कर दें। यस सर। ठीक है? यस सर। इज इट ओके लव? यस सर। अच्छा, लव तू बहुत इंटेलिजेंट है, पक्का मेरा नाम रोशन करेगा 0 मार्क्स लेके। सर प्लस तो टू पता, एक्स हो जाएगा ना सर? यार मुझे पता है, मैं उसको डांट रहा हूं ना। साहिल, हाँ जी सर। प्लस 2xy, ए प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं है लव, प्लस 2yz। ठीक है? अब क्या करें इसमें? वाई स्क्वायर की वैल्यू फिल कर दें, ये एक्स जेड, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स जेड प्लस 2xy। सेम नीचे वाई स्क्वायर के प्लेस पे एक्स जेड प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2yz। ऊपर से क्या कॉमन है लव? सर एक्स, व्हाट इज लेफ्ट? एक्स प्लस जेड प्लस 2 वाई। नीचे से z कॉमन, x प्लस जेड प्लस 2y, ये दोनों कैंसिल हो गए, क्या आ गया? x अपॉन जेड, दैट इज द राइट हैंड साइड। यही प्रूफ करना था हमें। समझ आया बच्चे? Yes. लव सोनी जी, यस ध्यान सर। रखा करो कि a प्लस बी का होल स्क्वायर है, अकेले अकेले का स्क्वायर नहीं होगा, साथ में 2xy भी आएगा। ठीक है? सेम बच्चे, a अपॉन बी इज इक्वल टू बी अपॉन सी, प्रूव करना है ये। वही बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, कर लोगे? जहां बी स्क्वायर है वहां ए सी फिल कर देना। हाँ सर, कर लेंगे। ए बी सी आर इन कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन, वही सेम, ए अपॉन बी इज इक्वल टू बी अपॉन सी, वही ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, सारे अपने आप करने वाले। कल फिर क्लास नहीं लगेगी? क्यों नहीं लगेगी? लगेगी। तो 2 दिन तो इसमें लग जाएंगे। फिर तो 4 दिन तू तो मेरे को लगता है पूरा वीक लगा देगा।
बोलो। नहीं सर, काफी काम हो गया। मेरे को लगता है तूने अकेला 10th करके दुकान पे बैठने है ना, है बच्चे कृष्णा? नहीं सर। जब आगे तैयारी करोगे ना तो कम से कम 2-2 से सम देंगे तुम्हें एक दिन में। कैसे करोगे वो? इनको बच्चे अपने आप करोगे, करोगे ट्राई? यस सर। कोई बात नहीं, कल सबसे पहले यस डाउट, सर। जो भी जिसका डाउट होगा सारे पार्ट करने हैं, पर ये नहीं है कि एक पार्ट करके छोड़ दिया। ऑल ओके। पार्ट यू हैव टू डू। काफी काम है ये। 5 6 11 12 13 13 8 21 22 26 29 30 31 32 33 sums are there. ओके, मैं 2-3 आवर्स आपको लगेंगे। देखेंगे सर। तू देखता ही रहना। मैम भी कहेगी देखेंगे नंबर देते हुए, और नंबर दे कि ना दे, देखेंगे, फिर क्या करेगा? सर हाँ सर जी, कर लेंगे सर। कर लोगे पक्का? सर कर लेंगे मगर 2 दिन टाइम लगेगा बिकॉज नहीं मेरा लगेगा, टेस्ट है ना सर। कोई बात उसमें नहीं, जितने होते पढ़, हैं उतने कर लेना। पढ़ाई। हाँ बाकी सर। सारे कंप्लीट कर लेना, ठीक है? कल जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो कंपोनेंट ऑफ डिविडेंडो पे बेस्ड है, एंड दिस इज द लास्ट एक्सरसाइज। मोस्टली आप सबको आती है ये। सर इसके बाद सिमिलैरिटी स्टार्ट करेंगे ना? हाँ जी, इसके बाद सर समझ। लोसाई। बच्चे लोकाई तभी करना पड़ेगा जब तुम्हें सिमिलरिटी आता होगा, ठीक है जैमी? ओके सर। पर ये है, तेरा एग्जाम है ना, कब है? सर आज 16th। 16 को। अभी तो आज है 5, नियर अबाउट 10 days पड़े हैं, है ना? यस सर। चलो कोई बात नहीं, सिमिलरिटी का लोकाई करना है तो करवा भी दूंगा, कंस्ट्रक्शन पार्ट है। सिमिलरिटी का यूज उसमें कॉन्ग्रुएंसी का होगा ज्यादा। हाँ, कॉन्ग्रुएंसी का यूज होगा, वो तो किया हुआ है 9th में। सर इंटीग्रेशन का मतलब क्या है सर मैथमेटिक्स में? पता नहीं। सर पूछ रहा हूँ सर, आपको बोलो सर। जैसे नहीं पता यार इंटीग्रेशन का मतलब। सर इंटीग्रेशन बोल के कुछ करते हैं ना सर, प्रॉब्लम्स। +2 में आएगा, बैठा रहा अभी, हाँ ठीक ठीक है? है सर। मोस्ट प्रोबेबली कल परसों तक ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, साथ में संडे। कल का छुट्टी तो नहीं है सबको? किस स्कूल जाना है? सर मेरी तो छुट्टी है। जाना है। सर किस लिए छोड़ो छुट्टी छोड़ो सर? छोड़ो 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 छोड़ो, फिर संडे को देखते हैं। कल भी क्लास लगेगा, तो संडे को हम लोकाई कर लेंगे साथ में चैप्टर, ठीक है? सिमिलैरिटी आप एक दिन में खत्म कर संडे को दोगे ऑफ सर? रहेगा। सिमिलैरिटी नहीं होगा एक दिन, सिमिलैरिटी के लिए कम से कम 15 दिन चाहिए, कम से कम। सर सिमिलैरिटी करके लोकाई करेंगे ना सर? नहीं, वो उसका एग्जाम है इसलिए उसको पहले करवाना पड़ेगा मुझे। सर रिफ्लेक्शन कितना टाइम में हो पाएगा? रिफ्लेक्शन एक दिन में। इजी है। कुछ भी नहीं है। अभी सेकेंड बताऊं? हैंड लीव नो। एक सेकंड रुको, 2 मिनट। रिफ्लेक्शन में ये होता है बच्चे, 3 टाइप की रिफ्लेक्शन होती है। अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस, एंड अलोंग ओरिजिन। जब भी कोई एक्स एक्सिस के अलोंग रिफ्लेक्शन होगी तो वाई का साइन चेंज होगा। मान लो कोई 0.54 है, इसके साथ एक्स एक्सिस के साथ चेंज करेंगे, रिफ्लेक्शन करेंगे तो 5 - 4 हो जाएगा। वाई एक्सिस का है तो एक्स का साइन चेंज होगा, -5 4 हो जाएगा। अगर ओरिजिन के साथ है तो दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, -5 -4। बस यही मेन चीज है, इतना की है रिफ्लेक्शन। अगर ये सर ओके चीज हम, सर। हाँ, सर स्टैटिस्टिक्स करवा दिया। कोई बात नहीं, करवा देंगे, ठीक है? चलो मिलते हैं कल। ओके, टाटा, बाय बाय। बाय बाय सर। सर।